Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Dr. Rana Farat Mahmood, and this is our fourth lecture about radio and nuclear chemistry. The course code is Chem 4122. The content of this lecture are nuclear binding energy and mass defects. What is nuclear binding energy? Nuclear binding energy of a nucleus, stable or radioactive, give a measure of how strongly nucleons are held together within the nucleus. Atoms are composed of protons, neutrons, and electrons. The actual mass of atoms was observed to be less than sum of the mass of its constituent. The energy required for holding the nucleus together within the nucleus of the atom is called nuclear binding energy. It may be defined as the energy required to break the nucleus into its constituents, wherein the binding energy of electron to the nucleus has been neglected. So in this slide, we see what is binding energy. Binding energy of the nucleus that may be stable or radioactive. It gives the measure of how strongly nucleus are held together within the nucleus. Why the nucleus are stable and why these are unstable, we have studied this in the previous lecture. And in this lecture, we are going to study about the nuclear binding energy. Nuclear binding energy is the energy which is used to keep the nucleons together in the nucleus. Actually, atoms are composed of protons, neutrons, and electrons. But when we discuss about the binding energy, we neglect the mass of the neutron. The actual mass of atom was observed to be less than the sum of mass of its constituent. And this is called mass defect. That is, when we observe the actual mass of the atoms, which is the mass of nucleons, mass of proton plus mass of neutrons. And this mass is less than the total mass of the atom. So this is called mass defect. And where this mass disappears, why this mass is less than the actual mass? Because this mass is converted into the energy, and that energy required for holding the nucleus together within the nucleus of the atom. And this energy can also be defined as energy required to break the nucleus into its constituent. That means the same amount of energy is required when we have to divide the nucleons into separate particles where the bonding energy of the electron to the nucleus has been neglected. Here it is discussed that the binding energy we do not calculate the energy of the electrons because we are discussing about the nuclear binding energy. Nuclear binding energy means the energy of the nucleons, the energy of the protons and neutrons, the energy that holds these particles together within the nucleus. This is this can be calculated by using a different instrument like mass spectrometer. The isotopic mass of helium-2 4 is 4.20026 AMU, and theoretical mass of this helium can be calculated by mass of protons. It has two proton in it, so we can multiply mass of proton with two numbers plus the mass of neutrons, and it also have two neutrons in its nucleus. So when we
see the mass of proton, it is 1.00726 AMU, and mass of neutrons is 1.0080 AMU, and these masses can be multiplied by their numbers. So 1.00726 is the mass of proton, that is multiplied by 2, because the helium nuclei has 2 proton in it, plus the mass of neutron 1.0080 is also multiplied by the number 2, because the nucleus also have 2 neutrons. So when we add these two masses of protons and neutrons, it comes out to be 4.03052 AMU, and it is different from the experimental mass, that is 4.0026 AMU. So the difference of these masses to be, and it can be calculated as mass of the nucleids theoretical mass minus observed mass of the nucleids. So when we uh, make the difference of these two masses, it comes out to be 0.02782 AMU. So this is the difference in the masses of the nucleids when it is observed experimentally and it is calculated theoretically. So this difference of mass is also called mass defect. And what is AMU? AMU is the atomic mass unit, and its value is 1.67 10 raised to power minus 24 grams. So here we have learned that how can we calculate the mass of the nucleids, and you know that it can be calculated by uh, taking the difference between the two masses. One is theoretical mass, that is always greater than the other experimental mass. So the difference that comes out to be between these two masses is known as mass defect. जब mass defect में आता है तो mass defect क्या हो जाता है? Mass defect actually वो energy है, यानी कि जो mass होना चाहिए था उससे जो mass कम हो गया वो कहाँ चला गया, वो energy में convert हो गया। और वो energy कहाँ use हुई है? वो energy जो होती है वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में यूज होती है, उनको जोड़ के रखने में यूज होती है, और उसी एनर्जी को हम उसकी क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स थे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, उनको टोटल आपस में जोड़ के रखने के लिए जो एनर्जी यूज हुई वो उसी एक्स्ट्रा मैस से जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो एनर्जी जो होती है वो फिर बाइंडिंग एनर्जी भी कहलाती है, और उसी दो मैसेज के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम उसका मैस डिफेक्ट बोल रहे होते हैं। तो सिस्टम में हम देखते हैं कि जितना मैस कम होता है उतना ही उसके अंदर यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, या हम यानी कि जिसकी एनर्जी जो होती है वो यूज़ होगी तो एनर्जी कम हो गई, तो फिर इसका मतलब है कि सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और स्टेबिलिटी की वजह जो है वो उसके अंदर एनर्जी का यूज़ हो कि कैसे जो है वो हम कहते हैं कि मैस जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक हमारे पास साइंटिस्ट है जो कि आइंस्टाइन का नाम दिया जाता है, और ये आइंस्टाइन इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। इस E इज इक्वल टू एम सी स्केयर में हम यूज़ करते हुए डेल्टा एम को हम उसका मैस डिफेक्ट जो है वो बता सकते हैं कि अगर इतना मैस डिफेक्ट होगा तो कितनी एनर्जी के अंदर यूज़ होगा। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो वो हमारे पास जो है वो 931.5 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। यहाँ पे हमने इसकी बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट किया है, तो बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा है कि जो मैस डिफेक्ट है उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई करने से जो कि 931.5 है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 13 ग्राम जाउल, सॉरी 13 जाउल। ये इतनी जो वो इतना मैस जो है जो मैस डिफेक्ट था वो इतने के अंदर चेंज हो सकता है, यानी
कि अगर हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू 1 होगी तो बॉन्डिंग एनर्जी जो होगी पर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो हमारे पास आ जाएगी 1.6 10⁻⁻19 जाउल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो डेल्टा एम जो कि मास डिफेक्ट है वो क्या है, एनर्जी में चेंज होता है, और वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है ये हमारे पास Z एटॉमिक नंबर है जो कि उसमें हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद को मेंशन करता है। अगर हम Z की बात करें तो हमारे पास जो थोरियम है, यूरेनियम है, नेपट्यूनियम है, इनके अंदर जो है वो हैवी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी इनकी ज़्यादा है तो इसके अंदर स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इनके अंदर स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती। स्टेबिलिटी का ताल्लुक बाइंडिंग एनर्जी के साथ इस तरह से नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अगर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती तो इसका मतलब है फिर यूरेनियम को स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, क्यों हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन जो है उसकी स्टेबिलिटी के साथ है। तो बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ बताया गया है कि तब होता है कि जब हम तमाम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी को नहीं बल्कि पर न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी को देखते हैं। तो जहाँ पे पर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फिर हम जितने उसके अंदर न्यूक्लियॉन ज़्यादा हैं उसको हम जब डिवाइड करेंगे उसके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, तो हम उससे पर न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन बाइंडिंग एनर्जी ओवर n प्लस p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हुए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन क्योंकि उसमें कम होती है थोरियम न्यूरियम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो जब किसी बाइंडिंग एनर्जी को हम ज़्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो उतना ही कम हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब कम होगी तो उसके अंदर स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो हैवी हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं या हैवी न्यूक्लियाई होते हैं तो वो उतना ही अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कम होती है। इसी चीज़ को कम होती है। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है जो हमने पहले भी स्लाइड में स्टडी किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस गिव अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस। तो जितना उनके हम देख रहे हैं कि जी द न्यूक्लियस होल्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ए सर्टन मास इज लॉस्ट। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है कि जो थ्योरेटिकल मास है वो ज़्यादा होता है और एक्चुअल मास कम होता है। तो वो कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ अमाउंट उसकी ज़ाया हो जाती है। दिस इज़ नोन एज मास डिफेक्ट। और वो जो मास कम हो गया है या उसमें जो कमी आ गई है उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। डेल्टा एम एंड एनर्जी इक्वलेंट टू द मास लॉस्ट। तो वो जो उनका मास लॉस हो गया है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, इक्वलेंट उसी के अमाउंट के इक्वल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स आएगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी उनको जोड़ने के लिए रिक्वायर है और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वही उसके मास का लॉस बनती है, क्योंकि वो उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट होके लूज हो जाता है और वहाँ पे वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं और इस तरह से न्यूक्लियॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़ के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आगे हम देख रहे हैं इन जनरल द एग्जैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ द एग्जैक्ट masses ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स।
जो बात हमने पहले की है कि जो उसका एक्सपेरिमेंटल मास है, जो ऑब्जर्व्ड मास है, वो हमेशा जो होता है वो उसके थ्योरेटिकल मास या कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। द डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, और इसी डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोल रहे होते हैं। डेल्टा एम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने पिछली स्लाइड्स में देख लिया है कि कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, जो उसका कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल मास है, जो हम उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड करते हुए निकालते हैं, उसमें से हम एक्सपेरिमेंटल मास को माइनस करते हैं, तो जो आंसर आता है वही उसका मास डिफेक्ट कहलाता है। Conversion of mass into energy is established through the Einstein equation E is equal to mc square। तो इस कन्वर्जन को कि वो मैस कहाँ चला गया, तो वो मैस कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और वो एनर्जी यूज हो गई उन न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने में। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, तो हम देख रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square, where m is the mass of matter converted into energy E and c is the velocity of light। तो ये चीज़ हमने वो अपनी जो ब्लैक वाली स्लाइड्स हैं उनके अंदर पढ़ लिया है। आगे यहाँ पे है कि यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मैसेज एंड एनर्जी क्या होगी। द न्यूक्लियर मैसेज इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। न्यूक्लियर मैसेज को हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, म्यू विच इज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो कार्बन 12 का अगर हम पहले एक एटम का मास निकालें तो हम क्या करेंगे कि 12 को, जो कि उसके 6.02 × 10⁻23 का मास होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो कार्बन के 12 को 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा। फिर उस एक एटम के मास का जो 1/12 पार्ट होता है उसको हम 1 AMU के इक्वल कहते हैं। दस म्यू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, और ये इक्वल आता है 1.66 10⁻27 किलोग्राम या -24 ग्राम के। द एनर्जी रिलीज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वन atomic mass unit into energy is given by E is equal to mc square 1.66 10⁻27 into 10 c 3.3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट का जो है ये स्क्वायर है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने निकाली थी। ऊपर वाली क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये जो 1 AMU 931.5 जो आई थी, ये कहाँ से आई थी कि जब हम AMU की वैल्यू को मल्टीप्लाई। एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया था कि जो हमारे पास कंसीडर इन न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड X जिसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A है, दैट कंटेन Z प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद Z है। और ये कैसे हम न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकालते हैं कि जो उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं A होता है, उसमें से हम प्रोटॉन की तादाद माइनस कर देंगे तो हमारे पास जाएंगे उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद। सपोज द मास ऑफ द न्यूक्लियाइड इज M। अगर न्यूक्लियाइड का मास M है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज MP लिखेंगे और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम MN लिखेंगे। तो टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए A माइनस जेड यानी कि न्यूट्रॉन के जो तादाद होगी उसको हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस Z इंटू M ऑफ प्रोटॉन। तो उसमें से हमने क्या किया है कि फिर Z यानी कि तादाद जो प्रोटॉन की है उसको हमने मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद होती है, प्लस इसमें उसने ऐड किया हुआ है Z ऑफ M ऑफ इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो मास होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, 1836 टाइम लेस होता है एज कम्पेयर टू वन प्रोटॉन मास। तो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और एंड पे हमारे पास वही इक्वेशन आ जाती है। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि मास डिफेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि जो हमारे पास वैल्यू है, अभी हमने जो निकाला है थ्योरेटिकल मास, तो वो क्या था, प्रोटॉन का मास और उसकी तादाद प्लस न्यूट्रॉन का मास और उसकी तादाद, ये तो आ गया था हमारे पास थ्योरेटिकल मास। इसमें से हमने मास कर दिया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मास को माइनस कर दिया है, तो वो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज रिलेटेड टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। और इसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम कहाँ चला जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। Where delta E is the binding energy, delta M is the mass defect. Nuclear energy is measured in millions electron volt, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम न्यूक्लियर एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं कि यहाँ पे जो है वो आइसोटोपिक मास होता है, ये जो M है जो हमने बाद में निकाला था, और इसी तरह से यहाँ पे सी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट है और बाइंडिंग एनर्जी क्या कहलाती है, यही जो मास डिफेक्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल आ जाता है और इसको हम मेजर करते हैं इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10⁶ वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल आ जाता है और इसको हम मेजर करते हैं इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10⁶ वोल्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि जो nucleus hold proton and neutrons together during the formation of nucleus। तो यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करके बताया गया है आपको इस जगह पे कि बाइंडिंग एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो अगर हम पर न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करेंगे, तो अगर वो पर न्यूक्लियॉन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम आएगी, तो वो उतना ही जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास अनस्टेबल होगा, जैसे कि यूरेनियम थोरियम नेपच्यूनियम में आया था। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज देन गिवन बाय, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में इनटू 9.31.4, इसके साथ हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो आ जाता है आंसर, वेयर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इसके ये इक्वल होता है। तो इसी तरह से जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमारे पास 9.314 इंटू जेड मास ऑफ हाइड्रोजन, और जो है वो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद और मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस हमारे पास मास ऑफ आइसोटोपिक मास आ जाता है। तो ये हमने पहले भी देखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कि हमने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उनको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उनको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करके इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका ये वाला मास। इस मास में से हम उसका आइसोटोपिक मास का मल्टी माइनस कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.4 के साथ, तो हम ये उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कितना स्टेबल होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हमने ये निकाला था। तो ये जो स्लाइड हमने पीछे वाली देखी है, इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो है वो ले लिए हैं न्यूक्लियाइज, इधर हमने उसके जो है वो यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद, और इधर हमने उसकी बाइंडिंग एनर्जी को ले लिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इस तरह से उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। और सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी आ जाती है यहाँ पे आके, वो आयरन की है। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा कमी आना शुरू हो जाती है, और इस तरह से फिर ये यहाँ पे हमारे पास कम होना शुरू हो जाती है। यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो और भी कम हो जाती है पर न्यूक्लियंस। जो पर न्यूक्लियन का मतलब है कि हम उसके टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हमने उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिवाइड किया, तो इसलिए वो कम होना शुरू हो गई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम होगी तो वो उतना ही लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि अगर तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो 7.9 से लेके 9.7 के दरमियान आती है पर न्यूक्लियंस, तो फिर हम कहते हैं कि वो वाले कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होगी तो फिर उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं कि यहाँ पे ग्राफ को अगर हम इसके साथ मैच करते हैं आयरन के साथ, तो इसकी जो रफली वैल्यू आती है वो 8.7 आती है। और अगर हम यहाँ पे देखें जो दूसरी बिस्मथ है जो कि इसके लेड के बाद आता है, तो ये मोस्ट स्टेबल है एक आयरन और दूसरा बिस्मथ। और इसमें बिस्मथ की जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन जो है हमारे पास जो 7.9 आ रही है। तो 7.9 इससे, क्योंकि ये 8.7 है, इसको इधर मैच करें तो ये बिस्मथ का इधर मैच करें तो जो है वो 7.9 है। तो ये हमारे पास एक तो आयरन सबसे स्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई है, और दूसरा हमारे पास जो है वो हैवीएस्ट में अगर हम देखें तो बिस्मथ जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आती है 7.9। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान अगर होगा तो वो स्टेबिलिटी शो करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे 7.9 से कम अगर हमारे पास किसी की वैल्यू आती है तो वो भी क्या होगा, स्टेबिलिटी शो करेगा। क्यों करेगा वो स्टेबिलिटी शो? क्योंकि उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम होंगे तो फिर हमारे पास जो है वो उसी तरह से हम एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो ज़्यादा आएगी, एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा आएगी तो स्टेबिलिटी होगी। फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम होंगे तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कम होगी। अगर उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कम है तो फिर उनके अंदर रिपल्शन भी कम है, और अगर प्रोटॉन्स में रिपल्शन कम है तो फिर भी वो क्या है, स्टेबिलिटी शो करेंगे। जैसा कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, इसी तरह ऑक्सीजन हो गया। तो ये मोस्ट स्टेबलेस्ट एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनकी जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.9 से भी कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इनके अंदर जो है इनके एटॉमिक नंबर कम है, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम है, और बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इनकी हाई होती है। बाइंडिंग एनर्जी हाई का मतलब होता है कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई है, ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, और ये इन्होंने न्यूक्लियॉन्स को आपस में अच्छी तरह से जोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी हम देख रहे हैं 7.9 से भी कम है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ में हमने देखा है कि किस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी वाली थ्योरी को यूज़ करते हुए, जी स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग ए न्यूक्लियॉन्स इज द बाइंडिंग एनर्जी। ए का मतलब उसका जो एटॉमिक मास है, जितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन बाय बी बार। बी बार हम कैसे निकालेंगे? बी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब हम देख रहे हैं कि क्या ताल्लुक है बाइंडिंग एनर्जी का और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है? Mean binding energy per nucleon for the most stable isotope as a function of most stable isotope as a function of
For the most stable isotope as a function of mass number is shown in figure 13.2. The plot leads to the following inferences. तो वो जो एक ग्राफ हमने देखा था जिसमें हमने आयरन को, बिस्मथ को, हीलियम को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को डिस्कस किया था, उसी चीज़ से ये आगे उसको एक्सप्लेन करता है पॉइंट्स के अंदर। ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि किसकी वैल्यू कितनी आएगी, कौन सी की, और कौन कौन से जो होंगे वो न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे और कौन कौन से न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल नहीं होंगे। इसी ग्राफ को आगे उन पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला पॉइंट कहता है वो लाइट न्यूक्लियाइड्स। लाइट न्यूक्लियाइड्स का मतलब जिनके एटॉमिक मासेस 30 से कम होंगे। लेस देन 30 अगर होगा द पीक विद ए वैल्यू इन मल्टीपल ऑफ 4। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो जो पीक विद ए वैल्यू जिसके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो क्या हैं, ऐसे हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि 4 × 1 4 आ गया, 4 × 3 12 हो गया, 4 × 4 6 हो गया। तो ऐसे न्यूक्लियाइज आर मोस्ट स्टेबल हैं। तो ये पीक हमें शुरू में बताती है कि यहाँ पे जो है वो ये सारे के सारे मोस्ट स्टेबल हैं। जैसे जैसे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये स्टेबिलिटी भी शो कर रहे हैं, और उसकी स्टेबिलिटी की शो करने की वजह एक तो वो लाइटर न्यूक्लियाइज हैं, और दूसरा फिर जो है उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम होते हैं तो उनमें रिपल्शन कम होती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे उनके एटॉमिक मासेस बढ़ते हैं। तो इस तरह जो है वो हम देख रहे हैं कि ये मोस्ट स्टेबल होते हैं जिनकी ए वैल्यू लेस देन 30 होती है। दूसरे आ जाते हैं मीडियम मास न्यूक्लियाइड्स, वो जिनकी ए की वैल्यू 30 से लेकर 90 के दरमियान होती है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज टिपिकली फ्रॉम 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए इज इक्वल टू 16। तो ए इज इक्वल टू 16 यानी कि ऑक्सीजन की जो वो बाइंडिंग एनर्जी है वो तकरीबन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो फिर इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के बाद टू नियरली 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है फॉर ए बिटवीन 28 एंड 32। तो जिनके एटॉमिक मास 28 है और 32 है, उनकी जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होके 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, एंड इट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। फिर इसके बाद ये तकरीबन कांस्टेंट हो जाती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बियॉन्ड दिस, एंड शो ए ब्रॉड मैक्सिमम। फिर ये जो है वो हमें एक ब्रॉड मैक्सिमम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ से ये एक वैल्यू आ रही है जो 8.5 से ऑनवर्ड, फिर जो है वो हमें एक ब्रॉड मैक्सिमम नज़र आता है जिसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, नियरली कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं, द न्यूक्लियर्स फॉलिंग ऑन द मैक्सिमम आर मोस्ट स्टेबल। तो इस जगह पे वो जो ग्राफ में हमने देखा है जो एक इस तरह की पीक आ रही है जो कि ब्रॉड पीक है, उस पे जो न्यूक्लियाइड्स मौजूद हैं वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं। इन टर्न पोजेस हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई है। अकॉर्डिंगली आयरन 56 with binding energy per nucleon value is 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयरन की जो है वो 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है आयरन जो है वो। हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो आयरन है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.79 है। तो इसी 8.79 जो है हम कह सकते हैं कि अगर वैल्यू जो होगी वो तकरीबन 8.79 और 7.7 के दरमियान या 7.79 के दरमियान होगी तो वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। तो अब यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट उसमें हमें कि हैवी न्यूक्लियाइड्स, ऐसे न्यूक्लियाइड जिनके एटॉमिक मासेस ग्रेटर देन 90 हैं, तो उनके लिए क्या है, डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम। तो वो वैल्यू फिर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है 8.79 से,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A210, जिनकी एटॉमिक मास 210 जैसे बिस्मथ का 209 है। तो फिर बिस्मथ के लिए ये वैल्यू तकरीबन 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। इज द स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। बियॉन्ड दिस ऑल न्यूक्लियाइड्स आर रेडियो एक्टिव। और इस वैल्यू के बाद आगे जो भी हमारे पास हैवी मासेस वाले जो हमारे पास आते हैं न्यूक्लियाइड्स आते हैं बिस्मथ से ऑनवर्ड 210 से ऑनवर्ड, वो सारे के सारे मोस्टली क्या हैं, वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जो कि अल्फ़ा बीटा गैमा एमिटर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.79 और 7.7 के दरमियान है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। इसके अलावा भी जिनकी इनसे कम है, जैसे हमने देखा था कि जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं जो कि हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाइड्स थे, तो उन लाइटर न्यूक्लियाइड्स के अंदर भी स्टेबिलिटी है और वो हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हैं जिनके एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ। जी तो यहाँ पे कहा गया है कि जी कैलकुलेट द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ oxygen 816 nucleus. The mass of the oxygen atom is 15.994 AMU. The masses of hydrogen atom and neutrons are 1.0078 AMU and 1.0087 AMU. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का मास है, यानी कि प्रोटॉन का मास भी है, इसको हम कह सकते हैं, और ये जो है हमारे पास न्यूट्रॉन का मास है रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या करना है, पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट हमने कहा था कि मास डिफेक्ट डेल्टा m किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन एटॉमिक मास में से जब हम z को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, और न्यूट्रॉन का मास, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन को उसके मैसेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह जो है वो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है, उसको उसके मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे उसका जो एक्चुअल मैस है, ऑब्जर्व्ड मैस है 15.994 गिवन है। अब इसको हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.13714 AMU। फिर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका हमें पता है कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा m इंटू 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमने फिर पहले वैल्यू पुट की है, उसके अंदर जो मास डिफेक्ट है डेल्टा m की, उसको मल्टीप्लाई किया है 931.4 के साथ, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 127.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हमने इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन B बार इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ओवर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 16 से डिवाइड करेंगे तो 7.98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ से इसी तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ हीलियम एटम इज गिवन दिस। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से। जी तो यहाँ तक हमने अपना ये लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें हमने वो थ्योरी देखी है कि किस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इफेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम कैसे जो है वो बता सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाइड्स के साथ क्या होता है, कौन से न्यूक्लियाइड्स होंगे लाइटर में, मीडियम में और हैवीएस्ट न्यूक्लियाइड्स में जो कि स्टेबिलिटी शो करेंगे, और कौन से ऐसे न्यूक्लियाइड्स होंगे जो कि बाइंडिंग एनर्जी को देखते हुए अनस्टेबिलिटी शो करेंगे। ये हमारा लेक्चर जो है बेसिक का थर्ड लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर हम वापस आएंगे अपने नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर की तरफ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी